Okay, so welcome, ladies and gentlemen. Um, let's start the class. तो हम बात कर रहे थे about the last class last week. We were talking about the difference. If I remember correctly, we talked about the standardization bodies in the last class, where we talked about, for example, IEEE, where we talked about the IETF, we talked about the NC, we talked about the IANA, we talked about the ITU, and different standardization bodies whose job is, whose responsibility is to give you open standards. And these open standards are widely, globally accepted. Because of this, what we achieve, the best thing which we achieve is the interoperability. Interoperability, we also obtain, the competition, innovation, competition among the vendors, innovations. Everyone wants to give something better as compared to the others. So we talked about all of this in the last class. So, ladies and gentlemen, now we want to talk about the next topic, which is about the reference models. Reference models. Reference models से मुराद the models which the layered models, the layer structures, layered models which are used or given by different organizations. Like for example, we may talk about the best one, which is used wide world, is the TCP/IP model or the TCP/IP suite. Number two is the well-known OSI reference model. Number three is the novel netware, novel netware, and number four is the AppleTalk. So these are the four reference models which are available or which were available. So, ladies and gentlemen, if we talk about them, we can say that the last two, three and four, were proprietary solutions, which means they were related to a certain company. They were not open standards. So Novel gave a NetWare this model and the Apple by the AppleTalk. So these two systems or models were rejected by the world because they were not able to use that. That was the reason, simple. ये proprietary था. तो इन proprietary model के मुकाबले में these two, the first two, were the open standards and were accepted by the world, and they were supported by the international bodies. Therefore, among these two, then TCP/IP model with a 5 layers model or 4 layers model, why become acceptable? The major reason was it was implemented in all the Unix systems. And even today, and at that time, all the servers were on Unix. तो जिस भी क्लाइंट को इस यूनिक्स सिस्टम्स के साथ बात करनी है तो लाजमी तौर पे दे शुड बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, दे शुड बी द सेम ऑन बोथ एंड. इसलिए क्लाइंट्स ने नहीं, जब क्लाइंट के चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो विंडो पे हो चाहे वो मैक पे हो, तो उसके लिए जरूरी था कि वो भी यूनिक्स की तरह टीसीपी पे रहे. इस तरह टीसीपी बिकेम ए, जैसे मैंने कहा था, इट बिकेम ए स्टैंडर्ड which was de facto standard. De facto standard. Number two reason, because of the TCP success, was that they first implemented these models, and then they documented it. Then they documented the same. And because of this, the documents were very definitely. जब आप पहले किसी चीज को पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी क्लियर होती है, उसमें कोई बग्स नहीं होते, कोई खामी नहीं होती. इसलिए इजीली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी वेंडर हो, उसने इनको अपने सिस्टम्स में इंप्लीमेंट कर लिया. तो नाउ इजीली वी कैन से
that this model, the TCP/IP model, is the model which is used by the internet, which means globally accepted. So, ladies and gentlemen, we move there and we show you here that what is, first of all, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम ओपन स्टैंडर्ड में सबसे पहले बात ये करना चाहते हैं कि अगर लेयर्ड मॉडल इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या है। अगर मैं ये पूछूं कि वो कहना क्या चाहता है, अगर मैं ये पूछूं कि वो कहना क्या चाहता है इस टाइटल में, तो ये कहता है कि जी हमारे पास दो तरह के मॉडल पॉसिबल, हमें लगता है कि दो किस्म के मॉडल पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो मोनोलिथिक, यानी कि बस एक ही होता, एक ही सब कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको कोई भी प्रोग्रामिंग का टास्क दे देते हैं और आप बैठते हैं और एक फाइल बना के अपने इंस्ट्रक्टर को वापस भेज देते हैं कि जी ये लो सारा काम ये करता है। मोस्टली आप लोग अभी तक यही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो आपकी फाइल, आपका काम जो है वो चंद, हार्डली चंद लाइंस का कोड होता है। मिसाल के तौर पे 50 लाइनों का होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 100 लाइनों का होगा, बड़ा ही कम्प्लेक्स हुआ तो। लेकिन अगर आप अपने काम को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं, मिसाल पे फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, यू राइट डिफरेंट एंड देन यू कॉल दीज इन योर मेन प्रोग्राम, इट बिकम वेरी एफिशिएंट। तो यहां पर भी अगर एक ही, और लाजमी तौर पे ये नेटवर्किंग का काम है, ये तो मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड होगा। तो अगर मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड अगर एक ही फाइल के अंदर लिखा जाता, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया है, कि अगर आपने इसमें कोई भी लाइन, तो अमेंडमेंट तो साथ साथ होती रहती हैं, चेंजेस तो साथ साथ होती रहती हैं। तो अगर आपने चेंजेस करनी होती 1 मिलियन लाइंस के कोड में, तो इट माइट टेक मंथ्स, और शायद उसके बाद भी वो ठीक ना होता। क्योंकि अगर आपने कोई भी आइटम चेंज करना होता, पहले तो ये कि अगर आपने, आपको एक बंदा अगर कोड लिख रहा है, इसके लिए कोडिंग कर रहा है, तो उसको सारी लेयर का एक्सपर्ट होना जरूरी, जो कि नामुमकिन है। जैसे अगर आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और कहें जी मेरी आईज का मसला है, तो वो कहता है गलत जगह पे आ गए। तो यहाँ भी एक बंदे को सारी लेयर्स का, एप्लीकेशन से लेके फिजिकल लेयर तक का सबका पता होना नामुमकिन। फिर अगर वो कोई चेंज, अगर हम ये जूम कर भी लेते कि वो जीनियस, इतना जीनियस है, आइंस्टाइन से भी आगे है, तो फिर भी अगर उसने चेंजेस इतनी जगह पे करनी होती, तो लेट करें कि उसने 200 जगहों पे चेंज करनी है, अगर वो 200 के बजाय 199 जगहों पे भी चेंज कर दे, वेरी नाइस रिजल्ट। 110 आउट ऑफ 200, 199 जगहों पे। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में अगर एक जगह पे भी बग है, तो योर होल प्रोग्राम विल नेवर वर्क। दूसरा, इसलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर वाज बेटर देन दी मोनोलिथिक। अब इसमें तो हम राजी हो गए कि हमने अपने काम को, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता होता हूं कि आपकी चाहे वो बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग की है कि नॉन इंजीनियरिंग की है, अगर इसको एक ही यूनिट बना दिया जाता, तो ये नहीं हो सकता था। इसलिए उसको सेमिस्टर वाइज तोड़ दिया गया। और इवन बास टीचर तो उसको सेमिस्टर में भी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं कि जी ये मिड का पहले का है और ये मिड के बाद का है। तो दिस मेक्स दी थिंग्स इजी टू अकम्प्लिश। अगर यही आपको 50 सब्जेक्ट और 40 लैब्स दे दी जाती है डे 1 पे, और कहते हैं जब कंप्लीट कर लो तो आ जाना, तो ये कभी भी कंप्लीट ना हो। तो इसलिए लेयर्ड इज बेटर देन द मोनोलिथिक, यहां तक तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि लेयर करने के हमें फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा जो आपको नजर आना चाहिए, वो ये है कि अब किसी एक शख्स को सारी लेयर का पता होना या एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि जी मैं डेटा कम्युनिकेशन का माहिर हूं। मैं, अगर ये पीएचडी लेवल में भी लोग कहते हैं मैं डेटा कम्युनिकेशन में कर रहा हूं, इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज वर्किंग एट द फिजिकल लेयर ओनली। वो किसी और लेयर को के बारे में कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसी तरह कोई आपको कहे कि जी मैं मिसाल के तौर पे 802.11 पे काम कर रहा हूं, इसका मतलब है कि वो लेयर 2 पे काम कर रहा है। अगर कोई कहता है मैं ईथरनेट पे काम कर रहा हूं, मैं 802.
16 पे कर रहा हूं, इसका मतलब कि वो वाई मैक्स पे काम कर रहा है, इसका मतलब अगेन लेयर 2 पे काम कर रहा है। इसी तरह वो कहता है कि जी नहीं, मैं लेयर 3 पे काम कर रहा हूं, मैं राउटिंग पे काम कर रहा हूं, मैं कोई नया नया टीसीपी का वर्जन ला रहा हूं, इसका मतलब लेयर 4 पे काम कर रहा हूं, मैं कोई नया एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हूं। तो इस तरह मतलब ये है कि आपने अपने काम को छोटे पीसेस में जब तय कर लिया तो उसका एक्सपर्ट बनना मुमकिन हो गया। इसका मतलब है कि आप जो भी सोचेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी, उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। तो यूं एक एक फायदा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो मोनोलिथिक बनती है, तो आप कभी नहीं कह सकते किसी को कि जनाब आप मिसाल के तौर पे एक 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और आपका लेट करें 15 नंबर है, आपका डिपार्टमेंट 15 नंबर पे फ्लोर पे आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी पहले 15 नंबर बना लो, खैर है फिर 1 2 3 बाद में बना लेना। नहीं, पहले 1 2 3 4 बनेंगे, अप टू 15 जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह का फायदा है कि हर कोई अब अपनी अपनी मस्जिदों में काम कर रहा है, अपनी अपनी लेयर पे काम कर रहा है। लेयर 2 लाजमी नहीं कि पहले लेयर 1 कंप्लीट करोगे तो लेयर 2 फिर स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे एक नया वाईफाई का वर्जन लेकर आए, नोबडी स्टॉप यू, उसके लिए आपको फिजिकल लेयर और आपको लेयर 3 का एक्सपर्ट या नो हाउ होना, ब्रीफ सी नो हाउ होना, पता क्यों कि हर इंटरफेस अपना काम करती है, आप लेयर अपना काम करके नीचे की लेयर को दे देती है कि अगला काम तुम करो। ओनली दो इनके दरमियान, जो दो लेयर के दरमियान इंटरफेस है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। यानी कि इस लेयर को पता है कि मुझे नीचे लेयर को क्या देना है, और नीचे लेयर को पता है कि मुझे ऊपर लेयर से क्या लेना है और मुझे फिर इसमें फर्दर क्या करना है। तो यू आपकी जो प्रोग्रेस है, दैट हैज बिकम वेरी फास्ट। इसलिए जितनी तरक्की आपके नेटवर्क्स में हुई है, शायद ही किसी दूसरी फील्ड में हुई है, शायद ही किसी दूसरी फील्ड में हुई। विद इन रफली 40 years, नेटवर्किंग ने न सिर्फ अपने आप को तबाही की हालत पे यानी कि प्रोग्रेस शो की, बल्कि और फील्ड की प्रोग्रेस में भी हिस्सेदार बन गई। अब कौन सी फील्ड है जिसमें ये नेटवर्किंग इस्तेमाल नहीं हो रही, मैं बार बार आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। चाहे आप अपनी एजुकेशन को देखें, बगैर नेटवर्किंग के, बगैर इंटरनेट के मुमकिन ही नहीं है। अगर आपसे एक दिन भी इंटरनेट खराब हो जाए, घर का चंद घंटे के लिए भी खराब हो जाए, तो यू फील तो पढ़ाई, आज तो बस पढ़ाई गई। चाहे ऐसे आप पूरा दिन ना करें, लेकिन उस एक घंटे में जबरदस्त फील होता है कि आज की पढ़ाई गई। इसी तरह इसी तरह एजुकेशन के अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन के लिहाज से देखिए, तो आप समझते हैं कि मैं तो कट गया हूं दुनिया से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पूरा एक घंटा हो गया, एक दिन हो गया, मैं इंटरनेट से दूर हूं। इसी तरह आपके बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एजुकेशन, किसी भी दुनिया के कौम के लिए तरक्की के लिए दो चीजें, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। अगर उस मुल्क की, उस कौम की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, तो मिसाल के तौर पे आप तो कहते हैं हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन अपनी हैसियत देखें और जापान की देखें। जापान एटॉमिक पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर है, तो जो चाहता है वो होता है। तो कहने का मकसद है इकोनॉमिक्स भी आपकी बगैर इसके मुमकिन ही नहीं है, इंटरनेट के अलावा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये 5, अगर आप बात करते हैं अपनी टीसीपी मॉडल की, तो विल टॉक अबाउट 5 लेयर्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट दी ओएसआई मॉडल, दिस इज ऑफ 7 लेयर्स। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। लेयर के आपने फायदे तो देख लिए कि लेयर करने का क्या हुआ कि हर एक को पता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन क्या है, और वो उस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में बेहतर काम कर सकता है। दूसरा ये कि अगर हर कोई अपने अपने में काम कर रहा है, तो उसको अपर और लेयर, नीचे के लेयर में मुदाखलत नहीं कर रहा, इसलिए उसको कोई गम नहीं है कि मैंने अगर लेयर इस लेयर में चेंज किया तो मुझे सारी लेयर में जाके चेंज करना पड़ेगा। नहीं,
इसी तरह क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लेयर पे काम कर रहा है तो इनोवेशन ज्यादा आ रही है। जितनी रैपिडली चेंजेस नेटवर्किंग में आ रही है दुनिया की किसी फील्ड में नहीं, कंपटीशन भी उसी तरह ज्यादा है। और अगर मैं इसके कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिखा सकूं, जो कि दिखाना चाहिए मुझे, ये देखें तो फर्क दोनों में क्या आ रहा है कि जनाब ये जो आपका टीसीपी का मॉडल है, इसकी जो टीसीपी का मॉडल है, इसमें जो एक एप्लीकेशन लेयर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लेयर्स में, ओएसआई मॉडल में 3 लेयर, बाकी यू कैन सी इट सेम। ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी वही प्रोटोकॉल, यहाँ भी वही प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर जो नाम डिफरेंट है, नेटवर्क लेयर एंड इंटरनेट लेयर, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम प्रोटोकॉल्स। इवन इफ यू लुक एट डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यहाँ भी बाज किताबें इसको इकट्ठा करती हैं, लेकिन बाज किताबें इनको दो अलग लेयर में उसी तरह डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के नाम से याद करती हैं। एंड सिमिलर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल एट बोथ एंड सिमिलर मीडियाज आर अवेलेबल ऑन द सेम एंड। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि द 3 लेयर्स combinedly together into the application। अब आप पूछेंगे कि जी एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, तो मैं ब्रीफली ये कहूंगा कि क्यों क्यों मैं ब्रीफली अभी कह रहा हूं, क्योंकि हम हर एक लेयर पे, मैंने आपको कहा है कि जब यूं ही ये चैप्टर आज हम इंशाल्लाह खत्म कर लें तो हम हर एक लेयर पे एक, कम से कम एक, और बाज केसेस में एक लेयर के ऊपर हम 4 4 मॉड्यूल्स स्टडी करेंगे। तो बेसिक गोल इस चैप्टर का, इस कोर्स का ये है कि आपको फंडामेंटल्स के साथ आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर आप, और आपको ये बात मेरी एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी, जिस भी सब्जेक्ट में, ये एरिया में आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, आप कभी भी उस सेक्शन में, उस एरिया में मार नहीं खाते। मिसाल के तौर पे मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूं कि जितने भी मेरे सामने ये बैठे हुए हैं इनका मैथ्स कमजोर है। बल्कि मैं कमजोर कहने की बजाय अगर ये कहूं कि इनको मैथ्स नहीं आता तो शायद ये सब मुझसे लड़ना शुरू कर दें। ये कैसे आप कह सकते हैं, माशाल्लाह मैंने तो 98 नंबर लिए हुए हैं आउट ऑफ 100, मुझे आप कहते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं आता। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, मैं फिर भी कहता हूँ आपको मैथ्स नहीं आता। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है जी? क्यों मान गए इतनी जल्दी? क्यों नहीं कहा कि जी 98, मेरे तो 100 में से 100 मार्क्स से, लाओ अपनी डीएमसी मैट्रिक की और एफएससी की दिखाओ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे मुझे मैथ्स नहीं आता? क्योंकि मैथ्स इसलिए बना था या बना है, ये कौमें इसलिए इस्तेमाल कर रही हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, इससे मसाइल हल किए जाते हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों को इसके मसाइल हल करना मैथ्स के जरिए आता है? तो जवाब मिलता है नहीं, हमें तो इस चीज के हम मास्टर है कि हमें एक्सप्रेशन दे दी जाए, इक्वेशन दे दी जाए और कह दिया जाए इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन ये ना पूछा जाए कि इंटीग्रेशन से हो गया क्या, या ये ना पूछा जाए कि इसका अगर डबल डेरिवेट इंटीग्रेट किया तो फिर क्या होगा, क्या फर्क पड़ गया। हमें करना आता है। मुझे अल्लाह बख्शे में एक टीचर थे हमारे इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल सिस्टम, मैंने उनसे पढ़ा था। तो वो बता रहे थे कि जी मैं बाहर गया एमएस करने के लिए, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा ये करो, तो मैंने कहा जी मुझे, बड़ा सादा बंदा था, कहता है मैंने कहा मुझे तो ये नहीं आता। उसने कहा तुम्हें ये हल करना नहीं आता? नहीं, ये तो आता है। तो मसला ये है कि हमारे टीचर्स हमें मैथ्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो इक्वेशन, अब तो माशाल्लाह इतना बुरा वक्त आ गया है कि कई टीचर्स ने स्लाइड सॉल्यूशंस की बनाई हुई हैं और वो टीचर स्टूडेंट को दे देते हैं कि ये स्लाइड्स हैं, इनमें सारे सॉल्यूशंस हुए हुए हैं, देखते जाओ ये पेपर में आएगा। तो फिर हमें मैथ कैसे हम कह सकते हैं? और माशाल्लाह मार्क, जीपीए तो उसमें हमारा, फिर ऐसे सवाल, ऐसे उसमें तो 4 तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन हम उस टूल को इस्तेमाल करके
किसी भी सूरत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल नहीं। और हमें पता है कि मैथ तो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। इसका मतलब जब मदर का ही नहीं पता तो बाकियों में तो हमारा अशर ऐसे ही बुरा होना है। तो इसलिए जो बात मैं आपको कर रहा था कि यहाँ पे जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि आप ये सोचते हैं शायद एप्लीकेशन लेयर पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका क्रोम है, तो क्रोम क्या है? एक एप्लीकेशन है। फायरफॉक्स क्या है? एक एप्लीकेशन है। इस तरह कोई भी ईमेल की जूम क्या है? एक एप्लीकेशन है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। इसी तरह कोई भी आप एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन को आप सिर्फ ये कह सकते हैं कुछ एप्लीकेशन नेटवर्क बेस्ड हैं और कुछ नॉन नेटवर्क बेस्ड हैं। जैसे मैंने अभी जितनी भी एग्जांपल आपके सामने रखी, आउटलुक है तो क्या है? एक एप्लीकेशन है यू यूज फॉर ईमेल। तो कहने का मेरा मकसद ये है, नाउ इट इज ए नेटवर्क एप्लीकेशन। लेकिन इसके मुकाबले में इफ यू टॉक अबाउट दी इसके मुकाबले इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड या पावर पॉइंट इज अगेन एप्लीकेशन बट ए नॉन नेटवर्क। तो हम यहाँ पे नॉन नेटवर्क वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो आपकी मशीन पे बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्काइपी है, पहले इससे पहले आप लोग यूज करते थे। कोई भी चैट प्रोग्राम है, कोई भी वॉइस ओवर आईपी का प्रोग्राम है, तो ऑल ऑफ देम आर दी नेटवर्क एप्लीकेशन। तो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो यहां पे पड़ी हुई है। याद रखो कि आप अगर इस क्योंकि हम टीसीपी मॉडल की बात करते हैं, तो टीसीपी मॉडल में आपकी ये जो पहली तीन लेयर्स हैं, विच इज एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इंटरनेट लेयर, they are part of they are in software and they are part of your operating system. They are part of your operating system. चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो सोलारिस है, चाहे वो मैक है, चाहे वो एंड्रॉइड है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये तीन लेयर्स अपने अंदर इंप्लीमेंट की है। तो फिर अरबाब पूछ रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर कहाँ है? तो इनका जवाब ये है कि डेटा लिंक लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर is on hardware. मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर कहा ना, that is on hardware. जैसे शायद लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था एनआईसी कार्ड दिखाया था ना। तो एनआईसी कार्ड में आपका हार्डवेयर है, उस पे ऊपर आपका डेटा लिंक लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर इंस्टॉल्ड है। और बाकी जो फिजिकल लेयर है वो मीडिया में है, तो वो भी मोस्टली फिजिकल है, यानी कि या कॉपर है या एयर है या फाइबर है, कुछ भी है। क्लियर हो मेरी बात जी? तो कहने का मकसद ये है कि अब दो आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी एप्लीकेशन वो यहाँ पे पड़ी हुई है। एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3 अप टू एप्लीकेशन एन। किसी के कंप्यूटर में 10 एप्लीकेशन होगी, किसी में 50 होगी, डिपेंड। ये एप्लीकेशंस विच आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दे यूज द एप्लीकेशन। अगर आप यहां से देखें तो दे दैट एप्लीकेशन लेयर here as well as here provide an interface between the application and the lower network layer. दिस एप्लीकेशन जहां पे अगर मैं कहूं कि एक लाइन लगी हुई है जो कि एप्लीकेशन लेयर है, यहां पे एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स पड़े हुए हैं। ऊपर आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है एंड दैट एप्लीकेशन इज यूजिंग द प्रोटोकॉल्स विच आर हेयर इन द एप्लीकेशन लेयर। आप कहेंगे थोड़ी एग्जांपल तो दें, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मिसाल के तौर पे इस A1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं, इस A1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं क्रोम के साथ या फायरफॉक्स के साथ या डक डक गो के साथ या एज के साथ या इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, जो मर्जी आप नाम दें ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रोम करती क्या है,
तो कोई है जो मुझे जवाब दे, क्रोम क्या करता है या करती है, जो मर्जी आप कह लें। वेब ब्राउजर यानी कि एक वेब वेब क्लाइंट है, ये वेब की रिक्वेस्ट नहीं करता है। नो, ओके। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आया नौशीन, और मैंने यहां लिखा www.netacad.com। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस मशीन से, इस सर्वर से जिसका नाम है www.netacad.com। जो ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरी रिक्वेस्ट चली गई, और रिक्वेस्ट के जवाब में मुझे ये चीजें आ गई। तो इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट मैंने किसके थ्रू की, क्रोम के थ्रू की। तो क्रोम क्या है, एक क्लाइंट है। किस चीज का क्लाइंट है, वेब का क्लाइंट है। किस चीज का क्लाइंट है, वेब का क्लाइंट। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आ रही है? ओके। क्लाइंट समझते हैं, किसे कहते हैं क्लाइंट? शाबाश, डरे मत, कोई डर की बात। कि आपको पता है कि मैं इस क्लास में अपने घर से सैटरडे संडे को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, क्यों? भैया मैं नहीं आता ना, इसलिए तो हम आए हैं। अगर मैं पहले से आता है तो फिर तो आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आप आराम से अपने घर पे एंजॉय कर सकते थे कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों जाऊं। तो इसलिए कोई गलत भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो क्लाइंट का मतलब होता है वो चीज जो रिक्वेस्ट करे, और जो इस रिक्वेस्ट को पूरा करे उसे क्या कहते हैं, सर्वर। जो इस रिक्वेस्ट को पूरा करे, जैसे आसान सी हम एग्जांपल लाइफ में लें, तो हम हमेशा आईएमएफ से मांगते हैं। तो इसका मतलब हम क्या हुए, क्लाइंट हुए, और वो हमेशा हमें देता है, इसका मतलब वो सर्वर हुआ। तो यहां पर भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पेज दो, जिसके ऊपर ये तस्वीरें हो, ये बटन्स हो, जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर ये चीजें हो, ये मुझे दो। उसने मुझे दे दिया। इसका मतलब है कि उस अमेरिका में किसी मशीन के ऊपर एक एप्लीकेशन है जो ये चीजें दे रही है, जो ये चीजें दे रही है। इसलिए हम कहते हैं ये सर्वर है, और मैंने ये मांगा है, मेरे ब्राउजर ने ये चीज मांगी है, मेरे क्रोम ने ये चीज मांगी है, ये क्लाइंट है। बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये बात आपको मेरी समझ आ रही है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि ये हुआ कैसे। ये हुआ यूं कि मेरी यहाँ पे जैसे मैंने कहा क्रोम एप्लीकेशन है, जिसको मैं ये ग्रीन इसके ऊपर ही लगा देता हूं ताकि आपको नजर आए। इस ग्रीन एप्लीकेशन ने यहाँ एक प्रोटोकॉल को, एक रूल को सामने लाया, जिसका नाम है मिसाल के तौर पे HTTP या HTTPS या रेस्ट। तो ये इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल को, चाहे HTTP, चाहे HTTPS, चाहे रेस्ट, इनमें से किसी एक प्रोटोकॉल को इसने ये रिक्वेस्ट दे दी। अब आमतौर पे ये वेब की रिक्वेस्ट करने का मास्टर है, क्योंकि हमने कहा ना कि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या की हुई है हमने बार बार, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको वेब की रिक्वेस्ट करने का माहिर है, HTTP है, तो इसने इसको दे दिया। अब इसके आगे का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, एज ए नेम रिप्रेजेंट, प्रेजेंट यानी फॉर्मेट। तो ये जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसको एक खास फॉर्मेट में बना रही है। अब उस, और जब वापस आएगी तो वहां भी प्रेजेंटेशन लेयर है। हो सकता है कि उसमें पिक्चर्स थी तो उनको पिक्चर्स के तौर पे फॉर्मेट करेगा, अगर कोई वीडियो थी तो वीडियो के तौर पे करेगा, अगर कोई टेक्स्ट था उसको टेक्स्ट के मुताबिक करेगा। तो ये सारा काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का।
इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर का नाम है कंप्रेशन करना। क्या करना? कंप्रेशन करना। अब कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप डेटा का साइज कम करना चाहते हैं। आप डेटा का साइज कम करना चाहते हैं। आप कहेंगे क्यों करना चाहता हूं? वैलिड क्वेश्चन है, क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि ये जा रहा है किसी मीडियम पे, और हर मीडियम की होती है कैपेसिटी, जिसको अगर मैं इंजीनियरिंग टर्म में बात करूं तो मैं कहूंगा उसमें होती है बैंडविड्थ। क्या होती है? बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ बड़ी ही महंगा आइटम है, स्पेशली वायरलेस में। और में भी महंगा है। लाइन तौर पे अगर आप 10 फाइबर बिछाएं और उसके बजाय वही काम 8 फाइबर से किया जा सके तो आपने अपनी कीमत बचा ली है। लेकिन एयर में इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां तो आप 10 की बजाय 12 फाइबर भी डाल सकते हैं, पैसे हैं तो मसला नहीं है। लेकिन आप बैंडविड्थ नहीं खरीद सकते। हाँ इधर नहीं है। आप बैंडविड्थ नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो बैंडविड्थ ऑलरेडी, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 25 कुर्सियां हैं, आप 25 कुर्सियां हमने बेच दी हैं, 25 लोग यहाँ के बैठ गए हैं, 26वां जो जो पैसे देना चाहे, सीट ही नहीं है। तो बैंडविड्थ में भी होता ही है कि मिसाल के तौर पे अगर हम जीएसएम की एग्जांपल लें, तो जीएसएम हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कंपनीज ने ये बैंडविड्थ खरीद ली हुई है। कुछ यूफून ने, कुछ भारत ने, कुछ जैज ने, कुछ टेलीनॉर ने, एंड सो ऑन। अब कोई और नया नहीं आ सकता। तो अगर आप अपनी, इसका मतलब है कि वो इस बैंडविड्थ के बिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं और हर साल देते हैं। तो कहने का मकसद है अगर वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, कम यूजर इस्तेमाल करेंगे तो उनको रिटर्न कम आएगा, फायदा कम होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर उनको कंप्रेस कर लें तो ज्यादा यूजर का डेटा भेज सकते हैं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो कंप्रेशन इज अगेन इसी तरह आसान। एक और अगर इस तरह समझ कम आ रही है तो दूसरी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक हार्ड डिस्क है 1 टेराबाइट्स। अगर आप उसमें इस तरह खुला डेटा रखें तो एक खास 1 टेरा उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी डेटा को कंप्रेस कर लें तो फिर आप उसी हार्ड डिस्क पे ज्यादा डेटा रख सकते हैं। वही आपके हार्ड डिस्क ज्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगी। तो आपके खर्चा बच गया ना। शुक्रिया। तीसरा काम प्रेजेंटेशन लेयर का इज द इंक्रिप्शन। इज द इंक्रिप्शन। क्या आप बताएंगी? क्योंकि आप इस फील्ड के साथ आपका डायरेक्ट तल्लक नहीं है, इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। अगर खामोश रहेंगे कि भाई गुजरने दें तो गुजर जाएगा लाजमी तौर पे, लेकिन आपके पास वो नहीं आएगा तो नहीं। मिसाल जब इंक्रिप्शन नहीं पता तो पूछे इंक्रिप्शन क्या है, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। इंक्रिप्शन शाबाश। डाटा को सिक्योर करना। मैं समझा दूं? तो यही पूछना मैं चाहता हूं कि आप पूछें, मत डरें। तो इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा हम जब कोई भी डेटा हम भेजते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं एहसान, अपना नाम लिख रहा हूं। इस तरह का डेटा को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। इसका मतलब आप में से कोई भी इसको पढ़े तो वो पढ़ सकता है कि जी कौन है, जी ये एहसान है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को कुछ तब्दील कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं जस्ट आसान सा चेंज करता हूं, मैं जो भी करेक्टर यहां लिखा उसको एक आगे कर देता हूं। आई के बाद क्या आता है? जे। तो मैंने यहां जे कर दिया। एच के बाद GHI, तो इसको आई कर दिया। ST हो गया। टी के ए के बाद बी और एन के बाद ओ। अब बताओ, ठीक है। क्या ये चीज आप इससे को पता चलता है कि ये आसान है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया है।
मैंने इसको इस तरह चेंज कर दिया है कि अगर आप में से कोई इसको पकड़ भी ले तो वो नहीं समझ सकता ये कौन है, ये तो जिडबू है, ये तो एहसान नहीं है। तो हम उस डेटा के साथ इस तरह का काम करते हैं कि अगर कोई पकड़ भी ले तो वो उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता या ना निकाल सके। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। क्योंकि हम, जैसे कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 30 इयर्स बैक अप्रोक्सीमेटली सिक्योरिटी सिर्फ चंद लोगों का शौक था। चंद लोगों से मेरी मुराद मिसाल के तौर पे आर्मी के लोग चाहते थे कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, एजेंसीज वाले, पुलिस वाले। लेकिन हम जैसे लोगों का ये दर्द सर नहीं था। लेकिन आज एवरी वन वॉन्ट्स के उसका डेटा कोई और पहले तो पकड़ ना सके, और अगर पकड़ ले तो वहां एहसान की जगह मिसाल तौर पे जिडबू लिखा हो ताकि पता ना चले कौन पढ़ा रहा है। जिडबू से तो कुछ नहीं पता चल रहा ना। तो कहने का मतलब इस अमल को कि आप डेटा को तब्दील कर लें इस तरह कि उसको आप उसको तब्दील करें और सिर्फ आपका जो डेस्टिनेशन है वो उसको वापस ला सके। मतलब वो क्या करेगा डेस्टिनेशन, वो इस जे को एक पीछे, जैसे हमने यहाँ एक एक आगे किया, वो एक एक पीछे कर देगा। तो जे से आई बन जाएगा, आई से एच बन जाएगा, टी से एस बन जाएगा, ए बी से ए बन जाएगा वापस, और ओ से एन बन जाएगा वापस, आसान बन गया। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इंक्रिप्शन। क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर ये तीन काम करती है। नंबर वन फॉर्मेटिंग, नंबर टू कंप्रेशन, एंड नंबर थ्री इंक्रिप्शन। तो अब क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर तो ओएसआई मॉडल में है, इधर तो नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन लेयर ने ये काम अंजाम देने हैं। आपकी एप्लीकेशन लेयर ने ये काम तीनों, और लाजमी नहीं कि आप ये तीनों करें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे कंप्रेशन की जरूरत नहीं है, मैं एक लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेट करने वाला बंदा हूं, मुझे नहीं है जरूरत कंप्रेशन की, मेरे पास बैंडविड्थ कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं प्रोसेस ये करना चाहता, ना करें। अगर आप मिसाल के तौर पे इंक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप कहते हैं कोई जरूरत नहीं थी, मुझे डेटा, मुझे तो सिर्फ एक केबल यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, इसमें मुझे इंक्रिप्शन की क्या जरूरत है, तो मस्ट नहीं है। लेकिन दी अगर करना है तो दैट इज द टास्क ऑफ दी, इन दी ओएसआई मॉडल दिस इज द टास्क ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, and in the OSI model definitely that need to be done by the application layer. Clear? Third, ladies and gentlemen, session layer. Session layer का काम, as the name represents, एक कनेक्शन बनाना। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कनेक्शन से मुराद ये नहीं होता कि दरमियान में लाजमी तौर पर मल्टीपल रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, मल्टीपल नोड, उन पे कोई रिजर्वेशन। ओके, तो मैं बता ही रहा था कि सेशन का मतलब ये है जस्ट एक विलिंगनेस बिटवीन द टू पार्टीज। अगर दोनों की विलिंगनेस होगी तो हम कहते हैं सेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो उस सेशन को एस्टैब्लिश करना, और अगर वो टर्मिनेट किसी हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, तो उसको री करना, दैट इज द जॉब ऑफ द सेशन लेयर। तो यहां पे ये तीनों काम कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर। ठीक हो गया, मेरी बात क्लियर हो गई? तो हम बात करना चाहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या बेनिफिट्स हैं। असल में हमारा टॉपिक ये था कि क्या बेनिफिट्स हैं लेयर के। तो सबसे पहला हमने कहा कि जी असिस्ट इन प्रोटोकॉल डिजाइन। हर लेयर के प्रोटोकॉल अपने अपने यहाँ लेयर करने का, अगर एक ही होता, मोनोलिथिक सोल्यूशन होता, तो लाजमी तौर पर मल्टीपल उसको डिजाइनिंग इतनी आसान काम ना होती। अब सिर्फ आपने एक प्रोटोकॉल डिजाइन करना है लुकिंग एट ओनली योर ओन लेयर। तो जी इस लेयर ने ये फंक्शन करने हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या करता है? फंक्शन करता है। प्रोटोकॉल क्या करता है? कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे राउटिंग करता है, तो ठीक है।
रिलायबिलिटी देता है तो ठीक है, एरर डिटेक्शन करता है तो ठीक है, यानी वट एवर एक काम कर रहा है, महदूद एक काम कर रहा है, तो लाजमी तौर पे आपको इस लेयर की वजह से आपको प्रोटोकॉल ज्यादा इफेक्टिव बनाने का ताकत मिल गई, because protocols that operate at a specific layer have defined information and they act upon and the defined interfaces to the layer above and, यानी मिसाल के तौर पे ये एक लेयर है, लेयर इसको हम लेयर एक्स कह लेते हैं, तो इसके ऊपर एक लेयर है LX-1 और इसके ऊपर एक लेयर है LX+1 फॉर एग्जाम्पल, यानी नेक्स्ट लेयर। तो बड़ी क्लियरली हमें पता है कि इस लेयर को ऊपर से क्या चीज मिलेगी, यानी ये इंटरफेस वेल डिफाइंड है। इसी तरह इसने अगली लेयर को क्या देना है, ये भी वेरी वेरी वेल डिफाइंड है, और इसका मतलब है बड़ा क्लियरली जब ये दोनों डिफाइंड है क्या मिलेगा और क्या देना है, तो इसको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या फंक्शनैलिटी है। तो इस तरह आप मोर इंप्रूव्ड मेथड्स, एल्गोज, मेथड्स, प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक मखसूस लेयर पे काम कर रहे हो, हर कोई अपनी अपनी लेयर पे काम कर रहा है, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि हर एक को पता है कि अगर मैं पहले मार्केट में ये चीज लॉन्च करूंगा तो मेरी मार्केट के ऊपर एक सुप्रीमेसी कायम हो जाएगी। तो कंपटीशन, अगर मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी जो कि 2025 में आनी है मैं 2030 में दे रहा हूं तो कोई भी नहीं लेगा उस वक्त। नंबर 3, प्रिवेंट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी चेंज इन, एक लेयर में अगर कोई तब्दीली की गई तो दूसरी लेयर पे कोई फर्क, क्योंकि हर लेयर इंडिपेंडेंट है, हर लेयर इंडिपेंडेंट है। हर लेयर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तो ये भी एक फायदा है, क्योंकि हर लेयर इंडिपेंडेंट है तो आपको ये काम नहीं होता कि मैंने यहाँ तब्दीली की तो बाकी लेयर सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, अब उनका सोचो। नहीं, आप अपनी लेयर पे काम करो, इंप्रूव करो, जो मर्जी करो, अपर लेयर लोअर लेयर, नो वरीज। फिर हमने कहा कि जी कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्किंग फंक्शंस, हर लेयर की अपनी कॉमन लैंग्वेज है, यानी कॉमन फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको बस उस फंक्शन के ऊपर मरकूज होना है, बाकियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लेयरिंग। अब हमने यहाँ पे, जैसे मैंने आपके पहले एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन लेयर क्या है। याद रखें कि एप्लीकेशन लेयर वेरी वेरी क्लियरली यू शुड नो इट इज ए प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज द जॉब ऑफ द एप्लीकेशन लेयर? प्रोसेस टू प्रोसेस एप्लीकेशन। अब मुझे सबसे पहले जी जी यही हम कहना चाहते हैं कि नहीं करेगा। जी बिल्कुल, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपने अच्छा क्वेश्चन कर लिया, मैं यहां पे चले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मिसाल के तौर पे इस लेयर का काम है, इस लेयर का काम है कि ये राउटिंग करे। राउटिंग का मतलब है बेस्ट पाथ फाइंड करे। इससे ऊपरी लेयर का राउटिंग से कोई दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है, इससे नीचे वाली लेयर का भी राउटिंग से कोई काम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल ले आऊं, यानी मिसाल तौर पे पहले मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल रखा होता लेट इट बी एक्स, मैंने उससे एक अच्छा प्रोटोकॉल निकाल लिया X+, तो लाजमी तौर पे ये काम अगर एक्स की वजह से ऊपर की लेयर का तो राउटिंग के साथ तलक ही नहीं है, तो वो तो इफेक्ट ना हुई। फिर दूसरा मैंने आपको कहा कि हर लेयर का को पता है कि मुझे ऊपर की लेयर से क्या मिलना है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस जो है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। तो चाहे इस यहाँ पे आप चेंज करें इंटरनली, यही तो एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपको हमने राउटिंग का काम दे दिया, आप राउटिंग आप जैसे मर्जी इंप्लीमेंट करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। इसका मतलब है कि आपकी नोबल सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं कहा जा रहा, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना।
जैसे मर्जी करते हो करो, बस रिजल्ट अच्छा वाला निकाल के लाओ। तो इस वजह से आपको बस ये पता है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये चीज प्रोवाइड, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना है। आप कर रहे हैं तो यू आर ग्रेट। इसलिए लेयर्स में होने की वजह से आपको कोई फर्क, जब आप एक लेयर पे तब्दीली करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक नई टेक्नोलॉजी ले आए, मतलब मिसाल के तौर पे एक वक्त में लेयर 2 पे सिर्फ इथरनेट था, बाद में वाई इथरनेट, आपने इथरनेट के इतने फ्लेवर ले आए। मिसाल के तौर पे इनिशियली इट वाज 10 megabit per second, then it came fast ethernet which was 100 megabit per second, then came gigabit ethernet, again 10 times faster, then 10 gigabit per second, then 40 gigabit per second। तो लाजमी तौर पे आप यहाँ चेंज तो कर रहे हैं ना, चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की लेयर को इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो ज्यादा डेटा देगा, मैं ज्यादा आगे भेज दूंगा, बस बात खत्म। गॉट इट नाउ? नाइस। ओके, तो एक एक लेयर, हाँ मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था कि ये प्रोसेस है क्या चीज। मैंने कहा ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। मकसद क्या है इसका? तो अयान, इसका मकसद ये है कि अगर एक डिवाइस मेरा, मिसाल के तौर पे चले मैं अभी एग्जांपल देता हूं, एक तरफ मेरा डिवाइस है माय लैपटॉप, एंड माय लैपटॉप इज टॉकिंग टू, कम्युनिकेटिंग विद जूम। ये देख सकते हैं कि मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं। तो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ जूम है। जूम मैंने यहाँ पे जूम की एप्लीकेशन रन की। कैसे रन की ये देखें। मैंने मैंने ये प्रेस किया, जूम वर्क्स प्लेस। मैंने इसको जू ही क्लिक किया तो एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया इस एप्लीकेशन में। लेकिन हमने तो प्रोसेस कभी देखा ही नहीं, तो पहले हम इसको देखना चाहते हैं। तो मरवान, मैं यहाँ पे दिखाना ये चाहने के लिए मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाता हूँ, ऑल कंट्रोल डेल को प्रेस करता हूँ और टास्क मैनेजर में जाता हूँ। तो आप यहाँ पे आपको नजर आएगा, क्या देखें मेरा जूम चल रहा है। तो जूम मैंने स्टार्ट किया, उसने ये ये प्रोसेसेस बना दिए। मिसाल के तौर पे आपको मेरा व्हाट्सएप चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये मैं क्या करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं इसको यहाँ से व्हाट्सएप को पकड़ता हूँ। लेकिन मैं पहले इसके आपको पहले बताता हूँ कि जी मैंने व्हाट्सएप स्टार्ट किया तो ये प्रोसेस, व्हाट्सएप का प्रोसेस जो कि आपको नजर आ रहा है कि मेमोरी भी खा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि सीपीयू भी इस्तेमाल कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि वो डिस्क भी इस्तेमाल कर रहा है, नेटवर्क भी देखें इस्तेमाल कर रहा है, एंड सो पावर भी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे लो है लेकिन कर रहा है। अगर मैं इस प्रोसेस को पकड़ के किल कर दूं, एंड टास्क, तो आप गौर करेंगे कि जो ही मैं इसको एंड टास्क करूंगा यहां से ये व्हाट्सएप गया। तो आप चेक करते हैं कि जाता है कि नहीं। ये देखें जी, मैंने क्लिक किया एंड इट इज गॉन। यहाँ पे वो प्रोसेस भी खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो नेटवर्क बेस्ड हो चाहे वो नॉन नेटवर्क बेस्ड हो, एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। जी, जब हम, जी जी, तो जब हम कोई प्रोग्राम में एप्लीकेशन रन करते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो एप्लीकेशन, आप ये कह दें कि आपने कोई काम करवाना है, तो आप मिसाल के तौर पे आपने सफाई करवानी है, तो आप अपनी मैड को कहते हैं कि जनाब लाओ और यहाँ पे पानी डालो और ब्रश लगाओ और साफ करो। इसका मतलब वो आपके, आपने एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया, और एट द एंड ऑफ द डे आपने कहा देखो मैंने कैसी सफाई करवा ली है आज। तो आप एक एप्लीकेशन है और आपने आगे एक प्रोसेस, और लाजमी नहीं कि एक प्रोसेस, आप मल्टीपल प्रोसेस, एक प्रोसेस हो सकता है कि आप अपने मेड को कहें और वो दो औरों को बुलाए कि आ जाओ मैम ने बहुत ज्यादा काम दिए आओ मेरे साथ ये काम करो, उसने आगे और प्रोसेस क्रिएट कर लिए। जैसे मिसाल के तौर पे if you look at here, गूगल क्रोम मैंने स्टार्ट किया तो मल्टीपल प्रोसेसेस उसके बन गए।
आज तो क्या, आगे जाके अगर मैं बात करूं तो हर एक प्रोसेस के अंदर फिर थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं एंड मल्टीपल थ्रेड्स आर देयर देन। लेकिन मैं इस लेवल पे जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने अपनी जूम एप्लीकेशन स्टार्ट की तो मेरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और इस प्रोसेस ने एक रिक्वेस्ट भेजी जूम को, जो कि सर्वर है अमेरिका में है, उसने भी एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया। अब ये दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पिछले 40 मिनट से ये या पूरे दिन से ये एक दूसरे के साथ, हाँ, जब मेरा जूम का सेशन खत्म हो जाता है तो ये प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। फिर मैं जूम की एक नई मीटिंग क्रिएट कर लेता हूँ, दोबारा ये एक दूसरे दो प्रोसेस, एक प्रोसेस इधर ये रिक्वेस्ट करता है तो वो एक प्रोसेस अपना बना देता है, और दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ बात। इसलिए इसका मतलब है कि एप्लीकेशन क्या करती है, एप्लीकेशन एक प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्रिएट करती है। मेक सेंस? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। फिर मैंने कहा कि जी क्या काम है सेशन लेयर का, एक मैनेज करना सेशन को, मैनेज द डेटा एक्सचेंज, यानी मैनेज द सेशन। मैंने कहा कि हम इन इन लेयर को तो इकट्ठा पढ़ेंगे, लेकिन हर लेयर को हम मल्टीपल चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तो फोर्थ लेयर है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर के नाम और इसी ऑर्डर में और इसी नंबरिंग के साथ याद होना मस्ट है, कोई इसमें आपके लिए छूट नहीं पॉसिबल। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मैं ये फाइल आप लोगों को भेजना चाहता हूं, चलें ज्यूम कर लेते हैं कि मैं आपको ये फाइल प्रोबेबली कोई भी, ये चलें, ये फाइल मैं आपको भेजना चाहता हूं जिसका साइज को 25 GB है। नजर आ रहा है ना, 25 GB है। तो अगर मैं ये आपको भेजूं तो क्या होता है कि सिस्टम मेरी एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन भेजेगी? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब वो क्या करेगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहां से कोई रैंडमली, फिक्स नहीं है, रैंडमली कुछ बाइट्स उठाएगी और नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी। पूरा का पूरा 24 GB उसको 25 GB नहीं देगी, मे बी 2 किलो दे दे, 10 किलो दे दे, फिर 15 किलो दे दे, फिर 0.5 किलो दे दे। किलो मीन 1000। तो यूं इसका मतलब है कि उसको ये ब्रेक कर देगी, यानी कि सेगमेंट्स में तोड़ देगी। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट लेयर इसको सेगमेंट्स में तोड़ दी, यानी फाइल तो एक भेज रहा था मैं, लेकिन उसने इसको मे बी 1000 पीसेस में तोड़ दिया, यानी 1000 सेगमेंट्स में तोड़ दिया। लाजमी तौर पे अगर इस साइड पे तोड़ेगी तो वहां पे मेरा जो स्टूडेंट है, क्या फिर हम ये पीसेस चाहता है? नहीं, वो तो ये पूरा का पूरा पीस, ये पूरा का पूरा एक यूनिट चाहता है। इसके मतलब उधर उसको दोबारा असेंबल करेगी, जोड़ेगी। तो इधर सोर्स एंड के ऊपर तोड़ेगी और डेस्टिनेशन एंड के ऊपर जोड़ेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और बड़ा खूबसूरत काम है, वो ये है कि आप एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जो कि मिसाल के तौर पे अगर मैं मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हूं तो मैं दो बंदों से बात नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं जूम पे भी बात, मेरी कम्युनिकेशन हो रही है। मेरी ये मैं व्हाट्सएप भी स्टार्ट कर देता हूं दोबारा, ये व्हाट्सएप भी स्टार्ट कर दिया, ये भी देखें व्हाट्सएप भी स्टार्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली, नेटवर्क तो एक ही है, इस पे मेरी फेसबुक की चीजें भी जा रही हैं, यूट्यूब भी चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है,
जूम भी चल रहा है, मीट भी चल रहा है, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर हो गया? तो ये पहले उसको सेगमेंट्स में तोड़ता है सेंडर एंड पे, फिर उन टूटे पीसेस को भेजता है, और फिर उसको रिसीवर एंड के ऊपर इकट्ठा कर देता है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर का बेसिक काम बेस्ट पाथ फाइंड करना। नेटवर्क लेयर का क्या काम है? ये जो पीसीज आप ऊपर से बनाए गए हैं, उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढ। क्लियर? ठीक है ना? अभी जूम मैंने कहा ना, जूम पिशावर में तो नहीं है, जूम तो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में है। तो ये सारे पैकेट्स उधर जा रहे हैं, उधर रिसीव हो रहे हैं। तो कोई रास्ते में तो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, तो ये सारे मिलियन तो नहीं इस्तेमाल करता, उनमें से मखसूस इस्तेमाल करता है और अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है। तो दैट इज द जॉब ऑफ दी नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर पे है, कोई भी कोई भी एसिक है जिसके ऊपर एक कार्ड है, चले आसान कर लेते हैं, जिसका बेसिक काम क्या है? फॉरवर्डिंग। जिसका बेसिक काम क्या है? फॉरवर्डिंग। अगर आपको एक तरफ से डेटा मिला, आपने लेना है, नहीं लेना, उसको आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है, दिस इज दिस काम। एंड फाइनली द फिजिकल लेयर, जिसका काम है कि फिजिकल कनेक्शन बनाए। मीडियम इसमें आ जाता है, इनकोडिंग इसमें आ जाती है। हम हर लेयर को, मैंने कहा कि जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं, हम हर लेयर को डिटेल में और मल्टीपल चैप्टर्स इस पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो डरने की बात बिल्कुल ही नहीं। उसके मुकाबले में अगर टीसीपी है, तो मैंने कहा कि उनके कामों को इकट्ठा करके, स्पेशली बाकी सेम है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तोड़ रही है, ट्रांसफर कर रही है, इकट्ठा कर रही है। उसी तरह इंटरनेट लेयर बेस्ट पाथ फाइंड कर रही है, बेस्ट पाथ फाइंड कर रही है। उसी तरह इसने इन दो को इकट्ठा कर दिया, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ना भी करें तो इट इज एक्सेप्टेबल। हाँ, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि तीन लेयर को इकट्ठा करके एक लेयर बना दी गई, जिसमें डायलॉग कंट्रोल मीन सेशन बनाना, डायलॉग कंट्रोल मीन्स सेशन बनाना, वहां भी सेशन था। उसी तरह इनकोड करना, यानी फॉर्मेट करना, वहां भी था। तो वही काम कर रहा है जो कि एप्लीकेशन, वहां यहाँ भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वहां भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ही थे, तो इट इज सेम। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वही बताया गया कंपैरिजन, कि तीन लेयर्स को इकट्ठा करके, तीन लेयर्स को इकट्ठा करके एक लेयर बना दी गई। बस ये मेजर डिफरेंस है, थ्री इन दिस साइड, वन ऑन दिस साइड। बाकी नेम के अलावा कोई फर्क, इंटरनेट और नेटवर्क कहने से क्या फर्क पड़ गया? एंड आई विल नेवर अप्रिशिएट कि आप इन दोनों को इकट्ठा करके नेटवर्क एक्सेस लेयर पे शो करें, शो देम सेपरेट। इसके बाद हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन दी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन, मैंने जैसे अभी आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर गए, विच इज नाइस, कि आपको मेरी बात समझ आ रही है जेंटलमैन? ओके। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर ये मेरा 5 लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग विद दी, चलें पहली लेयर का नाम आप टॉप से स्टार्ट कर दें, बताएं। एप्लीकेशन लेयर, वेरी गुड। नंबर 2 लेयर का आप बता दें। ट्रांसपोर्ट लेयर, वेरी नाइस। तीसरे का आप बता दें। इंटरनेट लेयर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मूसा चौथे का बता देगा। डेटा लिंक लेयर, और फिहान जो है वो आखिरी का बता देगा, फिजिकल लेयर।
अब होता यह है कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है आपके कंप्यूटर पे, जिसका काम है कि वो डेटा जनरेट करे, डेटा जनरेट करे। जैसे मिसाल के तौर पे जूम चल रहा है, जूम मेरी पिक्चर भी पकड़ रहा है, मेरी वॉइस भी पकड़ रहा है, मेरी स्क्रीन भी पकड़ रहा है, और जो मैं राइट कर रहा हूं ये भी पकड़ रहा है, और फिर वो नीचे की लेयर को दे देता है। अब इस लेयर का काम ये है कि ये उसको, जैसे मैंने कहा, फॉर्मेट करे, कंप्रेस करे, इनक्रिप्ट करे, वगैरह वगैरह, सेशन बनाए, इसने कर लिया। फिर ये डेटा अगली लेयर के हवाले करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर करता है कि उस जो भी डेटा उसको एप्लीकेशन लेयर ने दिया, जिसको मैं D1 कह लेता हूं, इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपनी तरफ से एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। बल्कि ऐड से थोड़ी सी आ, अच्छी आवाज नहीं आती, तो मैं कहूंगा अपेंड कर देता है। ऐड से चीजें बदल जाती है, अपेंड से चीजें बदलती नहीं है, अपेंड कर देता है। ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। अब हमने जो मिसाल के तौर पे, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड बनता है वो, लेकिन आप करते नहीं है। अब अदनान ये सोच रहा है कि आखिर ये असेंबल, जैसा भी हमने कहा कि मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, तोड़ती है, जोड़ती है, रिलायबिलिटी देती है, मल्टीप्लेक्सिंग करती है। तो सवाल पैदा होगी कैसे करती है, कैसे करती है? कोई तरीका तो होगा ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तरीका ये है कि इसके साथ ये हेडर जो ऐड किया जाता है, ये सारे फंक्शन ये हेडर परफॉर्म करवाता है, खुद नहीं होता। मिसाल के तौर पे बेस्ट पाथ फाइंड करना खुद नहीं होता, वो हमारा हेडर उस पर्पज के लिए काम करेगा। तो जैसे कि आप मिसाल के तौर पे, आप गवर्नर हैं, तो आपको सिक्योरिटी कौन देता है? जो आके आपके पीछे और आगे गाड़ियां लगी होती हैं। तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं करते, वो गाड़ी आपको सिक्योरिटी देती है, वो आपके लिए रास्ता साफ करवाती है। तो इस तरह ये हेडर जब ऐड किया गया, तो ये वो फंक्शनैलिटी जो इस ट्रांसपोर्ट लेयर की ने वादा किया था कि मैं ये फंक्शन करूंगा, ये वो फंक्शन करवाने में मददगार होगा। मेक सेंस? इसी तरह ये सारा का सारा नेक्स्ट लेयर के हवाले कर दिया जाएगा, यानी इंटरनेट लेयर के हवाले कर दिया जाएगा। और जेंटलमैन, इंटरनेट लेयर इसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा, अपना हेडर ऐड कर दिया, जो कि नेटवर्क रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको करने में मदद देगा। इसी तरह ये सारे का सारा नीचे डेटा लिंक लेयर के हवाले कर दिया जाएगा। अब डेटा लिंक लेयर की अपनी फंक्शंस हैं, कैसे होंगी? वो अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देगा। और ये तो ट्रेलर भी ऐड करता है, हम पढ़ेंगे ट्रेलर क्या है और क्यों करता है, क्यों नहीं उसको हेडर के अंदर ही रख लिया गया, क्यों अलग रखा गया, सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद ये है कि ये जो हेडर्स ऐड किए जा रहे हैं, हर लेयर ऐड कर रही है, इस फिनोमिना को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। और असल चीज क्या चाहिए? असल चीज तो ये थी, ये D1 जो कि इस एप्लीकेशन ने दिया, जो कि इस एप्लीकेशन ने जनरेट किया। तो लाजमी तौर पे जब ये अपने एंड पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो ये सारे हेडर हमें इसे हटा देने होंगे, रिमूव कर देने होंगे। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ का गवर्नर प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, तो क्या वो पुलिस वाले जो हैं वो उसके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के जो जहाँ पे ऑफिस है वहां इंटर होते हैं? नहीं, उनको कहा जाता है रुक जाओ, साइड पे हो जाओ, सिर्फ गवर्नर साहब अंदर जाएंगे। तो इनको हटा देना, इनको हेडर्स को, इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन। डी इनकैप्सुलेशन। और अगर ये हेडर कभी दोबारा लगाना हो, जो कि हम देखेंगे बाज औकात हम हेडर हटा के और नया हेडर ऐड कर देते हैं, तो इस अमल को कहते हैं री इनकैप्सुलेशन।
इज इट क्लियर? ओके जी असद, दानियाल, इकरा, रिशवान, अभी तक मेरी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? तो जनाब दो जवाब मुझे मिल गए। देखते हैं कि किन किन का रिस्पॉन्स है। एक हमें दानियाल ने कहा कि यस सर, रिशवान ने भी कहा यस सर ऑल क्लियर, इकरा ने भी कहा क्लियर, सरवत भी कह रही है क्लियर, आमिना भी कह रही है क्लियर। तो ये अच्छी बात है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मुझ पे अभी किया गया कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां से, लेट करें दैट इज पिशावर, एंड आई एम सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम हियर, एंड दैट से डेटा, let it be we assume that that is reaching Karachi where we have इकरा। इकरा को ये डेटा जा रहा है। तो इकरा के पास क्वेश्चन इनका ये है कि कैसे हम यहां से जो डेटा भेज रहे हैं, कैसे हम ये श्योर कर सकते हैं कि वो डेटा एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने कहा था कि जो चीज यहां से भेजी गई पॉइंट वन से, जो कि इन दिस केस पिशावर, and reaching to Karachi, number 2 point. If this is something which has been sent is exactly same or approximately same, तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन हो गई। इसका मतलब है, चलिए हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि वी आर गोइंग फॉर दी एग्जैक्टली सेम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे इनका सवाल बड़ा वैलिड है, कैसे पता चलेगा कि वाकई ये वही चीज है जो कि 1 पॉइंट से भेजी गई है और 2 पॉइंट के ऊपर रिसीव हो गई है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर इसके दरमियान में क्या हो गया है? एरर हो गया। एरर का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे सेंडर यहां से भेज रहा है 1 और रिसीवर को रिसीव हो रहा है 0, इसका मतलब ये एरर है। अदनान अगर सेंडर भेज रहा है 0 और रिसीवर को मिल रहा है 1, इसका मतलब है कि क्या है? एरर है। क्या है? एरर बिट्स में होती है। मिसाल के तौर पे ये मेरा 1 था, असल में सिग्नल में होती है, बिट में भी नहीं होती, सिग्नल में होती है। कि मिसाल के तौर पे मैंने ये भेजा कि जनाब ये +5 वोल्ट है और रिसीवर को जाके मिल रहा है 0 वोल्ट। रास्ते में ये सिग्नल का साइज, स्ट्रेंथ गिर गई और वो 5 वोल्ट से -0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये वो सिग्नल नहीं है जो मैंने भेजा है, ये वो सिग्नल नहीं है जो मैंने भेजा है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि क्या हो, एरर अकर हो गया है, एरर अकर हो गया। या मैंने भेजा 0 और रास्ते में इसमें कोई सिग्नल ऐड हो गया जिसकी वजह से ये +5 बन गया, +2 बन गया, समथिंग डिफरेंट हो गया। तो मैं कहूंगा कि मैं क्या चीज अकर हो गई है? एरर अकर हो गया। अब बात समझ आ गई? अब आपका सवाल असल ये नहीं था कि एरर किसे कहते हैं। सवाल जो है अदनान का ये नहीं कि एरर किसे कहते हैं। वो कहता है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने 1 भेजा था वो 1 यहाँ पे रिसीव हुआ है या 0 हुआ है, और कैसे पता चलेगा कि नहीं वहां से तो 1 आया था, मुझे गलती से 0 मिल रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेलर लगाया गया है। और जब मैं ये डेटा लिंक लेयर आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये ट्रेलर इज यूज्ड, दिस ट्रेलर इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। एंड हियर मैं बताऊंगा कि द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड और दिस ट्रेलर इज कॉल्ड FCS, frame check sequence, and the algorithm which is used is CRC32। तो ये एल्गोरिथम हेल्प करता है, क्योंकि जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूं तो सर मैं ये बात करता हूं कि हो सकता है कि इन दोनों के पास, इस केस में हम ज्यूम कर रहे हैं कि इकरा के पास कोई जादू की छड़ी है
एंड इकरा उस जादू की छड़ी से मालूम कर लेती है कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो कि पिशावर से स्थान भेज रहा है, ये बदल गया है रास्ते में। तो मैं कहता हूं अगर इकरा को पहले से पता था तो फिर तो इकरा को क्लास ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको तो पहले से पता है कि मैं ये बोलूंगा। तो द आंसर इज कि नहीं, उसको नहीं पता, तो इसका मतलब उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि साइंस में कोई जादू की बात नहीं की जा सकती। इसका मतलब हर चीज किसके जरिए होती है, एल्गोरिथम्स के जरिए होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एरर डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स हैं वो हम रन करते हैं दोनों एंड पे, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे भी। और उससे पता चलता है कि जो चीज यहां से पिशावर से भेजी गई, क्या वो एग्जैक्टली कराची पहुंची है या नहीं पहुंची। क्लियर, नाइस, करें। डेटा को क्या करते हैं, पहली बात आपने जो की, थोड़ा सा मैं उसको क्लेरिफाई कर देख करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो डेटा मैं पिशावर से भेज रहा हूं, और जो डेटा जब लेट इट भी कराची पहुंचता तो बढ़ जाता है। नहीं, बढ़ता तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से, मिसाल के तौर पे चले मैं अभी आपको को बताता हूं। आपने क्वेश्चन ये किया कि जनाब ये डेटा का साइज बढ़ जाता है, मैं कहता हूं नहीं जी, ऐसा कैसे मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये फाइल ज्यूम करेंगे, मैं ये फाइल ज्यूम कर लेता हूँ readme.research, और मैं इसका साइज आपको दिखाता हूं। मैं इसका साइज आपको दिखाता हूं कि ये कितना है, प्रॉपर्टीज में जाके दिखाता हूं कि इसका साइज है 14.1 किलो बाइट्स। अब यही फाइल मैं आपको भिजवा देता हूं। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट में जाके 14.1 की डेस्कटॉप पे, ये जी रीड मी रिसर्च, ये मैंने आपको भेज दी, ये आपको पहुंच गई। आप इसको अपने पास देख लें, यहाँ भी ये बता रही है कि ये वही 14 किलो बाइट है। अब आप, मैं कहूंगा कि जिन लोगों का व्हाट्सएप खुला है, अगर आपका भी खुला है, तो आप जरा इसको डाउनलोड करके चेक करें इसका साइज क्या है। आपका मसला रिजॉल्व हुआ कि नहीं, ईमेल वाला हो गया। शाबाश, आपने चेक भी किया कि नहीं, सिर्फ आप इस ईमेल से, क्या साइज है, वही 14। तो ये कहना अदनान के भाई जो मैं भेज रहा हूं और जो वहां पहुंच रहा है, उस पहुंच तक पहुंच के वो ज्यादा हो जाता है, नहीं वो ज्यादा नहीं होता, वो ही रहता है। अगर ज्यादा हो जाता तो फिर तो मैं यहां से, मिसाल के तौर पे यहां से मैं भेजता। ज्यादा का क्या मतलब है, ज्यादा का मतलब है कि अगर इधर से मैं भेज रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा उसको ओपन करता हूं, ये है जनाब, ये फाइल में अगर लेट करें कि 7 ये हैं और 5 6 ये हैं, 7 6 13 लाइनें हैं, 14 लाइनें हैं। तो अगर ज्यादा हो जाता तो शायद 14 की बजाय 24 लाइनें हो जाता, 14 से 15 लाइनें हो जाता। कुछ चीज इंक्रीज होगी तो बढ़ेगा ना। तो नहीं वही आप खोल के देख लें उस डॉक्यूमेंट का, एग्जैक्टली यही है। इसलिए इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, जब हम फाइल भेज देते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, नहीं साइज नहीं बढ़ता। क्लियर, ओके। तो देर इज ए, आमिना कैरी क्लियर, जी बिल्कुल। देखिए सरवत ने, इवन सरवत ने, आई डोंट नो कि सरवत कहाँ है, कम से कम इस हॉल में नहीं है, लेकिन वो क्या अपने घर से बता रही है कि इसका साइज 14.1 किलो बाइट्स है, यही हमने भेजा है। तो साइज कभी भी ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। सर इन टीसीपी आईपी व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन डू वी यूज। ओके, तो जेंटलमैन, आपने क्वेश्चन ये किया विश्वान कि आप टीसीपी आईपी सूट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी कंप्रेशन इस्तेमाल होती है। तो जवाब ये है कि
एक ही कंप्रेशन का टेक्निक हर किस्म के डेटा के लिए नहीं है फिक्स्ड, हो ही नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं रिशवान, कि अगर आपके पास ये वर्ड फाइल है, मिसाल के तौर पे चले मैं यहाँ पे इसी के साथ खेल लेता हूं दोबारा, कि मैं इस फाइल को लेके और कहता हूं जी कि कंप्रेस, इसको मैं कहता हूं कि जी कंप्रेस कर दो, ये मैंने इसको कहा कंप्रेस करो, पर ये ओपन है इसलिए नहीं कंप्रेस हुई। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं, ये 14 किलो बाइट्स आपको नजर आए थे, और अब मैं इसे कहता हूं कि कंप्रेस हो जाओ, ये कंप्रेस हो गई। अब मैं आपसे इसकी साइज देखें तो 14 से कम होके देखें 11.5 किलो बाइट्स हो गया, तकरीबन 3 किलो बाइट्स कम हो गया। अगर मैं आपसे ये डेटा है, तो डेटा जो है वो कम हो गया। कौन सा टूल मैंने इस्तेमाल किया? आप कह सकते हैं विनरार, आप कह सकते हैं कि मैंने कौन यूज किया, विनरार। लेकिन अगर ये एक ऑडियो फाइल होती या कोई वीडियो फाइल होती, अगर मैं उसको कई विनरार इस्तेमाल करता शायान, तो क्या रिजल्ट आता? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या क्या? तो शायान का ख्याल है कि शायद वो कंप्रेस ना होता। लेकिन अगर हम पूछें कि आपका क्या ख्याल है, तो व्हाट अबाउट रिशवान, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि अगर मैं यही विनजिप या विनरार इस्तेमाल करता किसी ऑडियो फाइल पे, किसी वीडियो फाइल पे, किसी वॉइस सिग्नल पे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या ख्याल है नौशीन? तो यहाँ पे एक जवाब आया है, उसको देखते हैं और फिर मैं जवाब देता हूं। और मे बी सम डेटा वुड बी लॉस्ट। नो, डेटा इज नॉट लॉस्ट। अगर डेटा लॉस हो जाए, ये 14.1 किलो बाइट से डेटा लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस हो गया तो इसका मतलब इसको अगर वापस हासिल करना चाहूं, तो फिर तो लॉस हो गया डेटा, लॉस तो दोबारा स्टार्ट रिकॉर्डिंग के। ओके, तो हमने कहा कि नहीं, अगर हम ये, मैं आपको बल्कि ये टास्क देता हूं कि आज घर जाएं और आपके कंप्यूटर में विनजिप या विनरार ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप कोई वीडियो फाइल नहीं, क्या विनजिप नहीं करेगा, विनजिप या विनरार नहीं करेगा इसको कंप्रेस, बल्कि हर चीज के लिए अपना कंप्रेशन टूल होता है। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं ये वीडियो कंप्रेशन टूल है, ये ऑडियो कंप्रेशन टूल है, ये वॉइस कंप्रेशन टूल है, ये डेटा इंक्रिप्शन टूल है। तो इसलिए मैं रिशवान, मैंने सारी बात इसलिए की कि आपने कहा कि कौन सा टीसीपी में इस्तेमाल होता है, तो हर एक सोर्स को, सोर्स है मुराद डेटा सोर्स को देख के उसके लिए कंप्रेशन टूल इस्तेमाल किया जाता है। एक ही टूल फॉर ऑल नॉट पॉसिबल। जी, एप्लीकेशन नहीं, डेटा कंप्रेस होता है। आपने क्वेश्चन किया क्या एप्लीकेशन सारे कंप्रेस होते हैं, तो मेरा जवाब है एप्लीकेशन नहीं, डेटा कंप्रेस होता है। अब वो डेटा अगर ऑडियो का है तो उसके लिए अलग कंप्रेशन टूल होगा, वीडियो है तो अलग होगा, डेटा है तो अलग होगा। तो हर एक चीज के लिए, वॉइस है इवन, तो उसके लिए अलग कंप्रेशन टूल है। तो हर एक में कंप्रेशन के तरीके मुख्तलिफ हैं। अगर मिसाल के तौर पे क्या वीडियो कौन सी थी और साइज क्या था? जरा किसी बड़ी फाइल को लो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी, हमारा लेक्चर आज का फॉर एग्जांपल आपको मिल जाए, जो कि मे बी 100 मेगाबाइट्स का हो, आप उसको पकड़ें और उसको विनजिप के हवाले करेंगे, देखिए क्या आपको जवाब देता है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले हम, हाल तो टॉपिक तो हमारा इंकैप्सुलेशन है, लेकिन इसमें हम पहली चीज सीखना चाहते हैं विच इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटिंग मैसेज क्या मतलब है? सेगमेंटिंग मैसेज का क्या मतलब है? सेगमेंटिंग मैसेज का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन,
कि जैसे मैंने भी कहा कि मेरे पास यहाँ पे 24 गीगाबाइट की फाइल है और इस खातून के पास भी लेट करें 10 गीगाबाइट्स की फाइल है, ये भेजना चाहते हैं इस सर्वर की तरफ। तो एक तरीका तो ये है कि माशाल्लाह ये 24 गीगाबाइट की फाइल पकड़े और यहाँ पे भेज दे। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये कि अगर ये 24 गीगाबाइट की फाइल यहाँ पे जा रही है, इट माइट टेक आवर्स, इट माइट टेक आवर्स। यानी कि आपको ये जो नजर आ रहा था कि मैंने 24 गीगाबाइट की फाइल डाउनलोड की, तो इट्स डेफिनेटली हैज टेकन आवर्स। थोड़ा तो नहीं है, 24 गीगाबाइट का मतलब रफली 25 है। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 गीगा का मतलब होता है बिलियन बिट्स। ये 1 मिनट 2 मिनट में नहीं हो सकता। इट हैज टेकन, इवन द स्पीड वाज गुड बट इट टुक आवर्स। तो इसका मतलब है कि इस दौरान अगर आवर्स में मैंने इस मीडियम को पकड़ लिया तो फिर ये खातून को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो घंटों बैठी रहेगी और कहेगी नेटवर्क काम नहीं करता। इसी तरह जब ये खातून अपने 10 गीगाबाइट्स यहां से भेजे और ये मीडियम को पकड़ ले, तो ये जनाब जो है आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि इस अमल को कहते हैं स्टारवेशन। इस अमल को क्या कहते हैं? स्टारवेशन। कि भाई सब कुछ होते हुए हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं। नेटवर्क तो माशाल्लाह 24 गीगा 25 गीगाबाइट को लेके भेजने में मसरूफ था, लेकिन बाकी जितने भी बाकी यहाँ तो एक हमने एग्जांपल में लिया है, यहाँ पे 10 लोग थे, 50 लोग थे, 1000 लोग थे, वो सब के सब कहेंगे नेटवर्क काम नहीं कर रहा। तो दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। दूसरा मूसा क्या बात करना चाहते हैं हम? दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि लाजमी तौर पे ये मीडियम है। जैसे अभी कुछ देर पहले अदनान ने बात की कि एरर तो आएगा, हम ये तो नहीं कह सकते एरर नहीं आएगा। तो अब एरर की क्या लाजमी तौर पे एरर को किस चीज में मैयत किया जाता है? प्रोबेबिलिटी में। कि क्या प्रोबेबिलिटी है एरर की? चले हम आसानी के लिए कह देते हैं कि 1 बिलियन बिट में से 1 बिलियन बिट में सिर्फ एक बिट, मतलब इतना कम एरर है माशाल्लाह, सिर्फ एक बिट एरर में जाती है। लेकिन मेरी कितनी बिट्स हैं? 2,200 गीग। इसमें कितने बिट एरर आने का चांस है? प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर आपने 1 रुपए की एक चीज मिल रही है तो 200 रुपए की 200 चीजें कितने की मिलेंगी? 200 रुपए की। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि 200 बिट्स एरर में आएंगे। तो अगर 200 बिट एरर में आए इस 20 इसमें, तो दिस होल विल बी ट्रीटेड एज गार्बेज। दिस होल विल बी ट्रीटेड एज, भाई इसमें तो 200 बिट्स एरर में है, एक बिट का एरर भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब ये तो और अगर मिसाल के तौर पे 10 घंटे के बाद पता चला कि ये तो गार्बेज है, तो 10 घंटे बाद फिर ये स्टार्ट करेगा, तो बस लगा रहेगा। दूसरी दफा कोई छोटी तो नहीं है कि 200 जो हो सकता है ज्यादा हो जाए या थोड़े कम हो जाए, लेकिन होंगे तो सही, होंगे तो एरर तो होंगे ही होंगे। इसलिए इन दोनों मसलों से, स्टारवेशन के और ये जो मैंने अभी आपके सामने रखा, ओवरऑल नुकसान क्या होगा? घंटों लग गए और ये कहेगा मुझे तो एक बिट भी रिसीव नहीं हुआ, ये कहेगा ना। घंटों लग गए और फिर भी ये सर्वर कहेगा कि मुझे तो एक बिट भी नहीं मिला। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगी? जीरो। एफिशिएंसी का मतलब तो आउटपुट होता है। यहाँ तो एक बिट भी सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ, एक फाइल भी रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब एफिशिएंसी वेरी लो या जीरो। लाजमी तौर पर कोई बिट नहीं रिसीव हो रहा तो आप कहेंगे स्पीड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। सुबह से बैठा हुआ, एक बिट भी, एक फाइल भी डाउनलोड नहीं हुई। तो अब हल क्या है? हल ये है कि आप इस बड़ी फाइल को पीसेस में, सेगमेंट्स में तोड़ दें, जैसे कि हमने बात की। इसमें तोड़ दें, सेगमेंट्स में।
जी अभी मैंने बताया, सवाल मरवान ने किया कैसे तोड़ेंगे, तो जवाब है कि अब आपकी एप्लीकेशन ये सारे का सारा बड़ा चंक नहीं देगी, बल्कि इसमें से कुछ बाइट्स उठा के नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी, ये लो पहला पीस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये सारी कुर्सियां उठा के बाहर ले जाओ, तो एक तरीका तो ये कि सारी कुर्सियां आप किसी तरह आपके ऊपर रख दी जाएंगे, जी बाहर ले जाओ, इट्स नेवर पॉसिबल। लेकिन अगर आप एक ही कुर्सी आपको दे दी जाए तो आप आराम से इसको बाहर ले जाएंगे। तो इस तरह वो कुछ बाइट्स वेरिएबल, कभी 1000 बाइट्स, कभी 1500 बाइट, कभी 1400 बाइट, कभी 1200 बाइट, कभी 800 बाइट, कुछ कुछ बाइट्स आपको देता जाएगा। यूं आपका बड़ा मैसेज छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। इस अमल को कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इसका फायदा क्या? एक फायदा तो ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपने आपका जो डेटा है, मिसाल के तौर पे वो, चले हम ज्यूम कर लेते हैं कि 2000 बाइट्स हैं। 2000 बाइट्स, आपको पीस मिला कितना? 2000 बाइट्स का। तो अब क्या होगा? 2000 बाइट से हम देखते हैं कितना टाइम लेगा। पहले तो घंटों लग रहा था ना, ये 25 GB में रिक्वायर आवर्स, मे बी डेज। ठीक है ना? ठीक है फिर हम, तो आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास आजकल के हिसाब से कितनी बिट रेट कितना होता है, स्पीड कितनी है आपको मिल रही होती है। चले हम रिज्यूम कर लेते हैं, आपको 100 MB/s मिल रहा है। 100 million bits/s। और ये कितने बिट्स हैं? इसका मतलब है कि 100 million बिट्स इन 1 सेकेंड। आपके पास कितने बिट्स हैं? 200 × 8, 2000 बिट्स कितना टाइम लेंगे? If you do the cross multiply, you get this question mark value is equal to 2000 into 8 divided by 100 million. Now this is a very small quantity. करके देख लें, 16,000 तकसीमें कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं, ये कैलकुलेटर, क्या जवाब आएगा? इसको प्रोग्रामिंग से ले जाते हैं साइंटिफिक में, और साइंटिफिक में 2000 into 8 is 16,000। 16,000 divided by 10 exponential 8, 1 exponential 8, सिर्फ 8 हो गया। 16,000 divided by 10 exponential 8। अच्छा पहले शायद 8 देना है, 8 10 या 10 exponential 8। व्हाट इज द रिजल्ट? 0.00016। और अगर आप इसको साइंटिफिक में ले जाएं तो इट इज 16 मिलीसेकंड। इसका मतलब है कि ये साहब सिर्फ 16 मिलीसेकंड के लिए इस मीडियम को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद खाली हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस दौरान फिर ये खातून अपना पैकेट भेज देगी, कोई और भेज देगा, तो स्टारवेशन का खतरा, स्टारवेशन का जो मसला था, दैट इज रिजॉल्व। स्टारवेशन का मसला रिजॉल्व। दूसरा, अगर आप स्पीड ये देखें कि आपने छोटा पीस भेजा है सिर्फ इतना बाइट्स का, इतने बिट्स का, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा? अभी हमने एज्यूम किया था, क्या एरर हमने क्या एज्यूम किया था कि एक बिट एरर में आती है जब आप 1 मिलियन 1 बिलियन बिट्स भेजते हैं, ये कहा था ना। अगर यही कहा था तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास अब कितने बिट्स हैं? 2000 into 8 which is 16,000। 16,000 bit, how much bits will be in error? E. Again, if you multiply these two, the error will be 10 raised to power, कोई गलती हो गई है, 10 raised to power 9 बिट में एक बिट एरर में।
तो एक बिट एरर में तो हमारे पास कितने बिट्स हैं? 10 रेशो पावर 16,000 बिट्स हैं। बिट्स, बाइट्स नहीं, बिट्स। तो एरर में क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नाउ इट इज जी, नाउ इट इज E इज इक्वल टू 16,000 divided by 1 billion. 1 billion. Again, it is a very, very small quantity. Is it? Is it? करके देख लो। 16,000 divided by how much? 1 billion. So 10⁹, sorry, 16,000 divided by 9 days. And you, 1.6 into 10⁻⁻6. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो पहले बड़ी हाई थी, अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब छोटे पीस भेजने से चांसेस ये हैं कि आपके पीसेस सही पहुंचेंगे। जब सही पहुंचेंगे तो आउटपुट आएगा, एफिशिएंसी आ गई। जब पहुंचेंगे तो स्पीड नजर आ जाएगी। तो इसका मतलब कि पहला काम हमारे नेटवर्किंग में ये है कि यू ब्रेक द थिंग्स इनटू स्मॉलर पीसेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी, दूसरा काम जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड, क्योंकि हमने तोड़ा है, अगर तोड़ा है तो इसको लाजमी तौर पे रिसीवर एंड पे फिर जोड़ना भी पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? कि अगर हम उनको नंबर करें, क्योंकि उसी ऑर्डर में जोड़ना जरूरी है। इसलिए जूं जूं हम तोड़ते जाते हैं, मिसाल तो भाई ये बड़ा चंक था, इस चंक से हम छोटे छोटे पीसेस नीचे दे रहे हैं, तो पहले पीस का नंबर 1 कर देते हैं, दूसरा पीस जब नीचे देते हैं तो नंबर 2 कर देते हैं, तीसरा पीस जब नीचे देते हैं तो नंबर 3 कर देते हैं। तो सेकंड थिंग इज, क्योंकि आपने तोड़ा है तो यू हैव टू जोड़ना, you have to assemble it back, you have to reassemble it back. So for this, important is that you should number it, you should must sequence it. देखो मेरी बात। नंबर 3, मैंने यहां पे वो बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि जब आपका एप्लीकेशन लेयर मिसाल तो पे ईमेल का डेटा है, तो यू हैव डेटा डेटा डेटा, तो वन ऑफ द डेटा इज हेयर and the transport layer is adding its own header. This whole is given to the next layer, and in network layer header is added. And do remember, एक चीज और भी याद रखें, जरूरी याद होनी चाहिए, वो ये है कि जब आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर लगाती है, और अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पढ़ेंगे कि अगर टीसीपी है तो यू विल कॉल इट ए सेगमेंट। नाउ अब इसको आप डेटा नहीं बोलेंगे, डेटा प्लस द टीसीपी हेडर इज ऑलवेज नोन एज सेगमेंट। और अगर यहाँ पे यूडीपी है, अनदर प्रोटोकॉल, तो मरवान फिर आप इसको सेगमेंट कहने की बजाय आप इसको यूडीपी डेटाग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? यूडीपी डेटाग्राम, डेटाग्राम। इसी तरह आप सारा का सारा ये चीज नेक्स्ट लेयर के हवाले कर देंगे, एंड नेक्स्ट लेयर अपना हेडर लगाएगी, तो यू विल कॉल इट आईपी, यू विल कॉल इट ए पैकेट और आईपी डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम। देन यू गिव इट द होल, यू गिव इट टू द नेक्स्ट लेयर। देख लो सारा का सारा नीचे आ गया, सारा का सारा नीचे आ गया, एंड यू ऐड द ओन हेडर एंड ट्रेलर, एंड यू विल कॉल इट अ फ्रेम। What you will call it? A frame. And these frame will be sent as bits, 1 and 0s, onto the medium. Although on the medium bits are not moving, basically these bits are encoded into the signals, either optical or electrical. लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं that is electrical. So a stream of signals moving toward the destination.
कुछ बात समझ आ रही? देन इज दी, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप। जो ये हेडर ऐड कर रही है, दैट फिनोमेना, हर लेयर अपना अपना हेडर ऐड कर रही है, हर लेयर अपना अपना हेडर ऐड कर रही है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, हर लेयर अपना हेडर ऐड कर रही है, ट्रेलर ऐड कर रही है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मेक सेंस? एंड देन इज दी रिसीविंग एंड पे, जैसे मैंने बताया कि हर एक लेयर अपना अपना जो हेडर ऐड किया था वो अपना फंक्शन उससे परफॉर्म करवाएगा और फिर उसको रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? एंड दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज डी इनकैप्सुलेशन। इज इट क्लियर? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना काफी। कल इंशाल्लाह ताला डेटा एक्सेस के साथ 3.7 टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। लेकिन पहले मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से जिनकी तादाद माशाल्लाह काफी कम हो गई है, आई डोंट नो द रीजन। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? दानियाल, असद, इकरा, रिशवान, रूला, सिराज, आमिना, क्लियर है? नाइस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, नाइस जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी जी, सेगमेंटेशन क्वेश्चन ये पूछा गया, सेगमेंटेशन किस लेयर का काम है? तो सरबत, सेगमेंटेशन जो है वो डेटा लिंक, सॉरी, सेगमेंटेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। जी, आप पूछ रहे थे? बिट्स को मूव, बिट्स मूव नहीं हो सकते। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिट और सिग्नल की स्पीड एक होगी, तो मैंने कहा जी, हाँ, आप क्वेश्चन जो मुझे समझ आया, आपका सवाल ये है कि अगर हाई है सिग्नल या लो है सिग्नल, सिग्नल चाहे हाई है चाहे लो है, वो एक ही स्पीड से आपके मीडियम के ऊपर मूव कर रहा है। ये नहीं कि ये हाई सिग्नल है तो ये ज्यादा स्पीड से जाएगा और ये लो है तो ये कम स्पीड से जाएगा, नहीं। तो एवरी वेदर हाई और लो, दैट इज मूविंग ऑन टू द मीडियम एट द सेम स्पीड। जी आयान, जी बा, एवरीवन क्लियर? चले, आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह विल मीट टुमारो अगेन। लेकिन एक दो क्वेश्चंस है। सिराज, नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर क्लियर क्लियर। और सरबत ने फिर लेफ्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।